Boxing. So before starting with that, does anyone having any idea what is mean by the string builder, or what is the difference between string and string builder? Anyone having any idea, any basic information? किसी को पता है what is mean by the string builder? Anyone? It's related to the string only, okay? So इंटरव्यू में इसमें क्वेश्चन रहता है आप लोगों को, what is difference between string and string builder? ओके, सो किसी को आइडिया है कोई व्हाट इज मीन बाय दैट? या if anyone knows the anything, they can unmute and talk, or maybe message on chat window about the string builder, basic knowledge, basic idea. Okay, no issue, we can start. Okay, so first we will go with the string. What is string? Already we have seen the string is one of the data type. With the help of string we can use the or do the manipulation, or do the perform the operation on the character related data types, right? So now we are going to discuss about string and the string builder. What is major and what is main difference between both of them? Okay, so that we will discuss. Okay, all right, so yeah, so yesterday we have seen the topic that is enum. So enum means it's kind of enumeration, so group of information, group of data we can um, using that group of data we can create a enum, and enum is basically constant. We cannot change the values of enum in runtime. Means whenever we define any enum, so that value we cannot change in the runtime. Means यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनम क्रिएट किया है तो उसके अंदर जो भी डेज है तो वो ऑलरेडी सेट है, तो उसके लिए इनम मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट एट रन टाइम यहाँ से हम कोई भी वैल्यू उसके वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए इनम मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके, सो enums values are constant, means we cannot change. So once we create a enum, so that enum we can access within the application everywhere. Okay, so these are the enums, two enums we हमने यहाँ पे create किए। enum first enum है days, second enum है http status codes। ओके, तो डिफरेंट वेज रहते हैं। ये फर्स्ट वाला enum है वो नॉर्मल enum है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज है। तो सेकंड वाला जो है इसमें टेक्स्ट वैल्यूज विद देयर सम कोड्स आर देयर। सो अपने हिसाब से हमें एक कोड देना है और कोई वैल्यू भी देना है, तो दोनों भी हम एट ए टाइम दे सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट थिंग, जैसे कि हमें इनम रिट्राइव करना है, तो इनम रिट्राइव करते टाइम जो भी इनम के अंदर वैल्यूज है, ओके, सो वो वैल्यू हम एज इट इज इजीली हम रिट्राइव करते हैं। अगर हमें इनम के बेसिस पे हमें वैल्यूज भी रिट्राइव करना है, तो दैट आल्सो वी कैन डू हियर। सो हियर वी हैव implemented एज अ बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग concept, okay? Yeah, but retrieving the values from the enum, it is also same, that what values we are passing, so according that we can retrieve that values। means normally यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी स्टेटस कोड है, तो उस स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग हमने स्टेटस कोड की वैल्यूज रिट्रीव की, कहीं कोड रिट्रीव किया, उसके बाद उसका नंबर रिट्रीव किया हम। सो like a way we can retrieve the values as well as them get the values from the enum itself। okay, नेक्स्ट थिंग इज इनम का यूज किस लिए किया जाता है कि अगर क्लब ग्रुप ऑफ डेटा हमें एक जगह पे सेव करके मल्टीपल प्लेसेस पे रीयूजेबिलिटी करना है कोड का। ओके, so this enum is basically option whenever we have to define that fields properties and we have to reuse in multiple places। okay, so हमें इन एप्लीकेशन पे कहीं पे भी like HTTP status code use करने हैं in application, right? So just we need to call this enum itself। so this enum will provide a solution or provide a way to implement all these status codes।
this is the enum. So okay, so this is the real time use of enum. So define करने के लिए कोई it's not difficult thing. Okay, so normally we can enum and the name of enum, उसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं कॉमा सेपरेटेड बाय. ओके, एंड फॉर द स्टेटस कोड आल्सो वी हैव द वैल्यूज, की एन वैल्यूज बोथ हमने डाले, जैसे कि इनम का नाम और उसके कोई वैल्यूज है, वैल्यू भी हमने सेट की, तो according that we can implement the same thing. Okay, so this is the all about enum that we have seen in the study session. So उसके ऊपर असाइनमेंट भी दिया था, so बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट भी किया है. जिनको कोई डाउट्स है, after this session also we can have the discussion on that. Okay, all right, so we are starting with new topic of today's, that is a string and string builder. तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. तो स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बिल्डर में एक्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले. फर्स्ट वी विल डिस्कस द थेरोटिकली डेफिनेशन एंड ऑल दिस थिंग, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे. उसके बाद वी विल सी द एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन. राइट, सो फर्स्ट थिंग, स्ट्रिंग. ओके, a string object cannot be modified after it is created. Okay, so once we create any string, so that cannot be modified. Okay, using string when we the value remain constant throughout the program. मतलब एक बार स्ट्रिंग का एक वैल्यू लिया, सपोज स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, सपोज कुछ तो नेम दिया हमने. ओके, तो वो नेम का जो वैल्यू रहता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन एज इट इज रहता है, सेम रहता है, वी कैन नॉट चेंज दैट. मीन्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग. उसके बाद है म्यूटेबल, मीन्स आई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. ओके, स्ट्रिंग इन सी शार्प आर आई म्यूटेबल, मीनिंग वंस string object is created it cannot be changed. Any operation that modifies a string actually creates a new instance. Immutable means what? String is immutable and string build is immutable. Immutable means what? So once we create any string object, right, so that cannot be modified within the application. And if you try to create a new object, okay, at that time it will create a new object itself. Means whenever we try to forcefully try to change the object, okay, so that time it creates a new object. That's why we can call as a string as a immutable. String is immutable and string builder is mutable. Immutable means what? Whenever we are changing the string objects, okay, so once we create a string objects, that time whenever we do some creating, try to create a new instance, so that time it is not allow to modify that, so that time it will create a new object. So that is the meaning of immutable. मतलब यहाँ पे immutable का definition है. ओके, string in C sharp are mutable, meaning once a string object is created it cannot be changed. एक बार हमने अगर वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर कोई वैल्यू डाली, तो वी कैन नॉट चेंज दैट. राइट, सो एनी ऑपरेशन दैट मॉडिफाइज अ स्ट्रिंग, कोई ऑपरेशन करके हमने अगर स्ट्रिंग मॉडिफाई किया, ओके, एक्चुअली दैट टाइम इट विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, सो जो पुराना है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो नया नया ही ऑब्जेक्ट बनेगा. सो दैट दिस इज द कॉल्ड एज अ immutable. ओके, अभी यूज देखो, यूज कौन से केस में कौन सा यूज करना है. String are typically used to storing constant and read-only values. Okay, suppose एक field से, now like let's say consider user name है. Okay, right, तो ये लॉगिन करने के बाद यूजर नेम आता है, और वो यूजर नेम हमें मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है. जब भी यूजर कोई लॉगिन करता है उसके बाद वो चेंज नहीं होगा. राइट, सपोज एक्स वाई जेड यूजर से हमने एप्लीकेशन को लॉगिन किया है, तो लॉगिन करने के बाद वो एक्स वाई जेड ही यूजर रहेगा. जब वो लॉग आउट करेगा उसके बाद नया यूजर आएगा. राइट, तो ऐसे सेम कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग, बिकॉज इट इज अ रीड ओनली एंड वी कैन नॉट चेंज दैट एज वेल. राइट, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ और रियल टाइम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग. मतलब एक बार हमने डिफाइन किया, उसके बाद हम वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट. ओके, वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट. सो दैट मीन्स
It is a real time use of string. एज अ परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए, ओके, connecting string using the plus operator repeatedly, okay, so can be inefficient because it involves creating new object every time. So as a performance wise, string is a slower because whenever we use a plus operator, that means it concatenate. Okay, so whenever we have created one string, that is for example एक string बनाया हमने, नेम बोल के एक स्ट्रिंग है, ओके, और उसी नेम में हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों पे ऐड करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम का एक स्ट्रिंग अलग है, लास्ट नेम का एक अलग है, और थर्ड रहेगा नेम का एक स्ट्रिंग। तो उस नेम के स्ट्रिंग में हमने दोनों कंबाइन किया। तो या फंक्शनलिटी वाइज इट विल वर्क सेम, बट as a performance we are concatenating, means this concatenating the strings, right? So obviously the performance will be slower, okay, in the case of string. So this is the key point of these strings, okay. तो अभी हम देखेंगे what is the difference between, actually what is the concept of string builder. String builder is a mutable. Mutable means what? String builder is mutable and designed for scenario where you need to modify or concatenate string effectively without creating new objects. Okay. Mutable means whenever we require, so that time whenever we modified that, okay, so that time there is a no need to create a new object every time, right? Every time there is no need to create a new object. So without creating new object each time, so we cannot have the string builder is appending that object itself, okay. So उसी उसी को अपेंड करके नया वैल्यूज, नए वेरिएबल्स, नए चेंजेस हम सेम स्ट्रिंग को हम अपडेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई we can use the append function for that, okay. So that's why string builder is a mutable means whenever we need to modify that string, so okay, so that time there is no need to create a new object. So within that object itself we can add the fields, okay. तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फील्ड ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रिंग में नहीं होता है, स्ट्रिंग में वी नीड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ओके। तो स्ट्रिंग में इट इज नॉट पॉसिबल, और वी did the concatenation also, but it need to be combine that two strings, okay. So that's why string builder is called as mutable, okay. String builder is called as mutable, okay. Then अगर यूज देखा जाए, use string builder when we need to perform multiple modification or concatenation many string together. अब स्ट्रिंग बिल्डर कौन से केस में लेना चाहिए, सपोज अगर हमारा कोई एक डायनेमिक स्ट्रिंग बनता है, राइट, कोई ईमेल है, ईमेल का टेम्पलेट है, बेस्ड ऑन द नेम, बेस्ड ऑन द वैल्यू इट इज चेंजिंग फॉर एवरीवन, राइट। एक टेम्पलेट है, मतलब यूजर क्रिएट होने के बाद एक मेल जाता है, राइट। तो मेल जाता है, वो एक टेम्पलेट है, हमने टेम्पलेट डिफाइन किया, और उसमें कोई वैल्यूज ऐसे रहते कि जैसे कि यूजर का नाम है, कोई चेंज है, तो वो हर यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, और हमें उसका एक स्ट्रिंग बना के प्रिंट करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि वी कैन यूज द string builder, means we have to modify multiple things, append that, so or concatenate that. So in that case we can use a string builder, because एक ही string builder के अंदर वो सारी चीजें हम दिखा सकते हैं, राइट। Next difference, important difference is a performance, okay. So as a strings performance is a slower because we are doing the concatenation, and every time it is creating new things, okay. So that's why as a performance wise string builder is slower, but in string is slower, okay. For string builder it is more efficient than the string concatenation using the operator when dealing with multiple modification due to its multiple nature, means अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना है, अपडेट करना है, तो या स्ट्रिंग बिल्डर इज अ गुड ऑप्शन, ओके, where we can easily modify the values, easily modify the things, okay. As because string builder is a powerful, because string builder there is one function that is string append, okay. So append means we can update them or add the values in string builder.
So this is the way, or we can say that this is the implementation of string and string builder. So this is the major difference between the both of them. इंटरव्यू के लिए आपको इसमें 100% क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. ओके. ऑल राइट. सो उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. ओके. सो नाउ नाउ अभी हमें एक स्ट्रिंग है, राइट. सो अभी स्ट्रिंग के केस में देखो. ओके. स्ट्रिंग के केस में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड स्ट्रिंग बिल्डर के केस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. सपोज स्ट्रिंग के केस में देखो. स्ट्रिंग के केस में अगर अगर स्ट्रिंग है पहला ये वेलकम. अगर दूसरा हमें लेना है तो डायरेक्टली वी नीड टू मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग. ओके. वेलकम की जगह पे हमें वेलकम एवरीवन डालना पड़ेगा. ओके. देन वेलकम एवरीवन जो भी मॉडिफाइड है वन बाय वन हमें ऐड करना पड़े. फाइनली जो है वो हमें फाइनल स्ट्रिंग एज इट इज हमें डालनी पड़ेगी. इनिशियल ऐसा किया था बट फाइनल में ऐसा आना चाहिए, तो वी नीड टू अपडेट दैट स्ट्रिंग. बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर we can append means we can add the content in existing string. Okay. जैसे कॉन्केटनेशन रहता है स्ट्रिंग में, हम कॉन्केटनेशन करके कर सकते हैं बट इट्स having the slow performance. Okay. But in string builder we can achieve this thing easily. We can achieve this thing easily in the string builder. Okay. So means modifying any existing string without changing the object, without creating the object, it is easy and maintainable in the string builder. So string builder में हम easily update कर सकते हैं, modify कर सकते हैं. Okay. So this is the basic difference between the string and string builder. Okay. As theoretically, anyone having any question, guys, till now in understanding or maybe any everyone understand the string and string builder का theoretically means concept wise difference in string and string builder. इंटरव्यू में आप लोगों को डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. सब लोगों को क्लियर है एज डेफिनेशन वाइज और व्हाट वी हैव टू अचीव in between both of them, everyone? Yes, no? So we'll, as practically we can see in depth, but yeah, initial level you guys need to understand the concept as well. So in the interview we need to and explain the concept, means what is the difference, where we use, okay, in which scenario. So that basically we need to understand. Okay. once we implement the practically, so then I guess yeah, उसी टाइम पे आप लोगों को क्लियर पिक्चर हो जाएगा. बट या फॉर नाउ आप लोगों को एज अ डेफिनेशन वाइज तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बताना. कोई क्वेश्चन पूछा तो दो तीन पॉइंट एटलीस्ट बता सकते हैं. Likewise, you guys need to prepare on that. All right, so yeah. तो ये की डिफरेंस हो गया लाइक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. तो हम उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. उसके बाद हम देखने वाले हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. एनीवन हर्ड अबाउट बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग इन C# .NET? एनीवन? What is mean by boxing? What is mean by unboxing? Anyone? किसी को मालूम है, किसी को आइडिया है? एनीवन हर्ड अबाउट बॉक्सिंग? इन जनरल बॉक्सिंग आप लोगों ने सुना होगा. ओके. बट या इन दिस .NET C# .NET बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग? सॉरी.
No, no problem. We will discuss end to end. Okay. Yes, yes. Yeah, so boxing and unboxing is a process where we can convert the value type to reference type or reference type to value type. So these are the conversion process basically in general. So boxing and unboxing we will see. So boxing is a process of converting value type to the object type or any interface type implemented by this as a value type. Okay. Boxing is a implicitly. So boxing क्या होता है कि अगर वैल्यू टाइप मीन्स व्हाट सपोज any integer, suppose integer I equal to 10, so this I means it's a value type that I directly store a value, so that's why we can call as a value type. Okay, so this I means I directly store a value, right? I directly store the values, so that's why we can have the uh, this I is a value type, right? So directly हम इस पे value store करते हैं, that's why we can have the so यहाँ पे आप देख सकते हो. Okay, so this integer I equal to 10 means this I is a value type. Okay, that I directly have the value type value. Okay, this 10 is a value, right? And that value we are storing in the I. So that means this I is a value type. Okay, so boxing is a process where we can convert value type to object type. Okay, value type to object type. So what is the need basically? Why it requires? Okay, or why we need to implement that? Okay, so there is a in this real time there is maybe requirement or there may be any additional uses, additional things that how to implement basically. So in that case, we can do a check where we can convert that things. Okay, so converting that value type to the object type, this is the called as a this process is basically known as a boxing. Okay, so बॉक्सिंग मतलब वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप हम कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं बॉक्सिंग, राइट? सो इस प्रोसेस के लिए हम बोलते हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग उसके अपोजिट है. अनबॉक्सिंग इज बेसिकली अपोजिट टू बॉक्सिंग. अभी देखो ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देखेंगे हम. ओके, तो प्रोसेस एक्चुअली देखो यहाँ पे ये वैल्यूज है. ओके, सो आई इक्वल टू 10 है. ओके, एंड इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में. ओके, सो जैसे कि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है वैल्यू टाइप में जब रहता है उसको बोलते हैं हम स्टैक. ओके, बट जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसी टाइम वो हो जाता है हीप में. मेमोरी का एलोकेशन के टाइप्स रहते हैं, राइट? मेमोरी एलोकेशन के टाइप्स रहते हैं, जैसे कि वैल्यू टाइप से गया तो दैट मीन्स वी कैन हैव द इट स्टोर्ड इन द हीप. बट जब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद वो विच बेसिकली रेफर एज अ हीप. ओके, तो जब भी हम एज अ वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप रिट्राइव करते हैं तो उसी टाइम वो वैल्यूज जो है वैल्यू का एज अ ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्जन करते हैं. ओके, सो कन्वर्जन को उसके कन्वर्जन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट मतलब वैल्यू टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. नेक्स्ट है. ओके, जैसे कि हमने कल एक चीज देखी थी वहां पे हमने ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग इम्प्लीमेंटेशन किया था. जैसे कि ओके, यहाँ पे जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, राइट? सो इन द दिस प्रोसेस. ओके, दिस प्रोसेस, तो ये जो है आप लोग बता देख सकते हैं. ओके, सो दिस कोड इज बेसिकली नॉट द वैल्यू, राइट? सो इसको हमने ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किया है वैल्यू में. ओके, सो ये जो लाइन है आपको अभी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग देखने के बाद पता चलेगा कि व्हाट इज दिस. अनबॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ converting object type to the value type. Okay, okay, it is a process of converting reference type to value type or object type to value type. Okay, unboxing extract the values from the references. Okay, reference type and assign it to the value type. So यहाँ पे this is the example. यहाँ पे आप देख सकते थे कि फॉर एग्जांपल ये कोड में HTTP स्टेटस कोड रहता है, सपोज ओके कोड है, राइट? बट हमने यहाँ पे क्या किया, ओके कोड का कोई तो एक नंबर होगा, सपोज 200 हमें रिट्राइव करना है.
सो लेट्स कंसिडर ओके का एक नंबर है यहाँ पे, राइट। ओके मीन्स 200। सो दैट 200 हमें रिट्राइव करना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो दिस इज अनबॉक्सिंग का एक एग्जांपल है, ओके। दिस इज वन एग्जांपल वेयर वी आर implementing this same as we are discussing now, okay. So now unboxing is a process where we can convert the reference type or object type to the value type, okay. Unboxing extract the values, okay, from the reference type and assign it to the value type. Unboxing is a explicit process है, unboxing is a explicit and boxing is a implicit, okay. What is mean by the explicit? Basically it means we have to cast explicitly, okay. Cast means we need to convert that values, okay. We need to convert, okay. So for example, let's consider object o equal to 10, okay. So this o equal to 10 means o containing the reference, or we can say the object, okay. So हमें उसको कन्वर्ट करना है एज ए नॉर्मल वैल्यू में, आई में हमें 10 आना चाहिए। सो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दिस और परफॉर्म द अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करना पड़ता है, जैसे कि बॉक्स में डालना है और बॉक्स से रिमूव करना है, सिमिलर वे प्रोसेस है। फर्स्ट बॉक्सिंग मीन्स इट इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन convert a value type to reference type, value type to object type, okay, and it is a implicit conversion process, okay. Boxing, unboxing उसके opposite है, reverse है। unboxing is a process where we can convert the reference type to the value type or object type to the value type. It is a explicit conversion process. सो दिस आर दी डेफिनेशन। उसके ऊपर भी आप लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज मीन बाय द बॉक्सिंग, व्हाट इज मीन बाय द अनबॉक्सिंग। डेफिनेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, सो ताकि यू विल हैव द गुड आंसर ऑन दैट क्वेश्चन, ओके। सो आज का जो सेशन हम देख रहे हैं उसमें टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ओके। इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स थिंग्स, इट्स अ सिंपल वन, बट आंसर ऑफ योर वट एवर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट, एंड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर डिफरेंस। सो ये दोनों क्वेश्चंस कभी कभी दोनों भी रहते ही, मोस्ट ऑफ टाइम पे दोनों में से एक 100% रहेगा, ओके। सो यू गाइज नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट। आप लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चन सेट मिलेंगे, जैसे कि अपना मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अपना हमारे जब कवर हो जाएंगे तो उसी टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन सेट मिलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो अनबॉक्सिंग इज बेसिकली अपोजिट प्रोसेस है, जैसे कि ऑब्जेक्ट तो हम ले रहे वैल्यू में, राइट। सो इट्स अ टोटली अपोजिट प्रोसेस। Yeah, so implicit, explicit. Boxing is basically implicit. It's happen automatically when a value type is converted to the object type. Okay, so that means implicit. Implicit is a process of automatically हम करते हैं। Explicit मतलब हमें मैन्युअली कास्ट करना पड़ता है, मैन्युअली हमें वो प्रोसेस ट्रिगर करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन हैव द explicit, okay. So boxing is implicitly and unboxing is explicitly. So yeah, we can have the implementation how we can try to achieve this boxing, unboxing, and the basic thing of string builders. So we, as usual, we can add the new page wherever it defines, or we can later in the usage, okay. ओके, सो आप लोगों, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, बट जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को एक अच्छा सा नाम दे दो, जैसे कि ओप्स कंसेप्ट। कोई अंदर के कंसेप्ट का नाम प्रोजेक्ट को मत दो, ओके। जो भी हम कंसेप्ट बना रहे हैं, लाइक वट एवर कंसेप्ट बना रहे हैं, तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, जो भी मैंने फाइल्स क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे फाइल का नाम देखो, फर्स्ट लेटर शुड बी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके। दिस इज अ टेक्निक्स, ओके।
ये सारी टेक्निक का जैसे कि आपने कोड किया और आपका कोड रिव्यू के लिए किसी सीनियर पर्सन के पास गया, तो देर आर कोड रिव्यू टेक्निक्स आर देर, ओके. So they will review. In the review, they will check how you have created the page, what is the structure that you follows, okay, any space between that. So ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो उसी टाइप से ही करो. आई कोड से ही बहुत सारे लोगों ने बीच में पेस यूज किया है, कुछ अंडरस्कोर यूज किए हैं, सो दैट इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस, ओके. फॉर नाउ दैट इज ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस की first name it should be the capital one, okay, and there is no space between that. first name capital होना चाहिए, okay. उसके बाद बीच में कोई पेज नहीं होना चाहिए पेज नेम के बिटवीन. सपोज हम स्ट्रिंग बिल्डर ले रहे हैं, स्ट्रिंग स्पेस बिल्डर, सो दैट विल नॉट वर्क, ओके, दैट विल नॉट वर्क. सो कीप इन योर माइंड जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है जैसे हम बताते हैं इन द सेशन, सो सेम थिंग यू guys नीड टू फॉलो बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर यू आर वर्किंग एज एक्सपीरियंस लेवल से. हम आप लोग कोई भी कंपनी में एंट्री करोगे तो दैट टाइम दिस चीजें मैटर करती हैं, राइट. ओके, स्ट्रिंग बिल्डर. सॉरी, यहाँ पे दूसरी जगह पे पेस्ट करना है. ओके, तो अभी हमें नॉर्मली पहले हमें स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग बन देखना है और उसके बाद हमें उस स्ट्रिंग को क्या करना है, एज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग देखना है और उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है एज अ यम. तो अभी ये एक ही एरर आया है यहाँ पे, ओके. तो ये एरर जब आएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, तो यहाँ पे हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया है, ओके. स्टैटिक मेन. बिल्ड करने के लिए शॉर्टकट बटन है कंट्रोल शिफ्ट बी. अगर आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी आप प्रेस कर सकते हो, तो इट विल गोइंग टू द बिल्ड प्रोसेस, ओके. पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग, व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रिंग, ओके. स्ट्रिंग में देखो, अभी स्ट्रिंग ऑलरेडी हमने देखा है बहुत सारी जगह पे, सो बट या नो वरी, वी कैन इम्प्लीमेंट स्ट्रिंग एज इट इज. सो फर्स्ट थिंग, ओके, स्ट्रिंग str इक्वल टू, सपोज एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, फॉर एग्जांपल हेलो, हेलो वर्ल्ड. ये हमने स्ट्रिंग लिया और उसको हम प्रिंट भी किया, राइट. नाउ मैंने अब अगर पहला स्ट्रिंग है str हेलो वर्ल्ड, ओके. सो str इक्वल टू, सपोज टेस्ट डाला, राइट. कंसोल डॉट राइट लाइन str, तो ये हमने यहाँ पे डाला. str इक्वल टू टेस्ट लाइन, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने डाला str, राइट. तो ये प्रोसेस हमने एज इट इज कर दिया यहाँ पे, राइट. सो उसके बाद देखो, उसके बाद जब भी हम स्ट्रिंग लेंगे तो पहले स्ट्रिंग str है उसमें हेलो वर्ड प्रिंट होगा, दूसरी जगह पे वो हमने सेम वेरिएबल को हम ओवरराइड कर रहे हैं, राइट. सेम वेरिएबल को हम ओवरराइड कर रहे हैं. तो ओवरराइड करने के बाद वो पहला जो हेलो वर्ड होगा वो अगर निकल के जाएगा, ओके, ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सेम वेरिएबल पे अगर हम ऐड करें तो इट विल नॉट ऐड, ओके, इट विल नॉट ऐड. उसके लिए हमें अभी देखो हम दूसरे स्ट्रिंग एक लेते हैं, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, सपोज first name we can add any name, okay.
Abhishek. Okay, suppose last name should be string. Okay, so this is one user's name. What we need to do, we have one another function, okay, another property. हमें वो फुल नेम में कंसिडर करना है, तो फुल नेम में करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम. तो लाइक वे वी कैन कंबाइन द थिंग्स इन अ स्ट्रिंग. ओके, एंड इसको हमें प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन फुल नेम यहाँ पे प्रिंट किया. सो इस वे से हमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग. ओके, इस वे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग. बट नॉर्मली देखो, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल थिंग्स. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम देख सकते हैं स्ट्रिंग str हेलो वर्ल्ड. ओके, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में str हमने लिया. ओके, str को हमने कोई वैल्यूज दिया, वो वैल्यूज हम प्रिंट किया. ओके, उसके बाद फर्स्ट नेम लिया, उसके बाद लास्ट नेम लिया. देन वी हैव टेकन द full name. Okay, and that full name we have printed here. So ये हम देखेंगे कैसा इम्प्लीमेंटेशन कैसा वर्क होता है. ओके, पहले लिया एस टी आर यहाँ पे लेने के बाद हमने वी कैन हैव द हेलो वर्ड. ओके, तो ये हेलो वर्ड हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो दैट इज अ प्रिंटेड. ओके, सो उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम देख सकते हैं सेम वेरिएबल हमने यूज किया. तो चेंज वैल्यू चेंज करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ओवरराइड हो गया. पहला जो हेलो वर्ड है वो निकल के गया, हेलो वर्ड इज नॉट देयर. ओके, तो निकल के गया, मतलब हेलो वर्ड टेस्ट अगर डालना होता तो हेलो वर्ड पहले प्रिंट हुआ. उसके बाद जब हम एस टी आर का जो वैल्यूज हमने यूज किए हैं, ओके, तो वैल्यूज हम पास करें, तो पहला जो वैल्यू है वो निकल के गया, उसको एज इट इज ओवर कर दिया हमने. राइट, सो ओवर कर दिया. नेक्स्ट देखो, अभी दो वेरिएबल्स हमने लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. अभी हमें कंबाइन में दिखाना है, तो कंबाइन में दिखाना है तो हमने क्या किया, फुल नेम एक लिया और फुल नेम में हमने एज इट इज जो भी वैल्यूज है हमारे वैल्यूज हमने डिस्प्ले किया. राइट, जो भी वैल्यूज है हमारे वो वैल्यूज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया. राइट, सो नाउ, so this kind of operation we can do means every time whenever we have to इंस्टेंट. अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये है फुल नेम. राइट, तो हमें फुल नेम डिस्प्ले करना था, इसके लिए हमने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ये यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमने. राइट, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं. सो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ मेमोरी. ओके, एंड इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस. सो इन दिस केस आवर परफॉर्मेंस विल बी शो फ्लो. राइट, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर हाउ वी कैन अचीव दैट वी विल स्ट्रिंग. ओके, तो ये स्ट्रिंग में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो दिस इज द वे वेयर वी हैव टू इम्प्लीमेंट a solution in the string. Okay, so now we can check the string builder. Okay, so string builder, now we have to check the string builder. तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है कि स्ट्रिंग बिल्डर में सपोज फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ओके, एस बी डॉट अपेंड. अपेंड में हमें डालना है सपोज माय नेम.
तो दिस इज द वे। स्ट्रिंग में क्या होता है, एवरी टाइम वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, न्यू fields, okay, and we can do the operation over there. Otherwise we do the concatenation। तो इसको हम क्या बोलते हैं, concatenation, मतलब कंबाइन करके हमने एक थर्ड वेरिएबल में लिया है। So it is a taking memory utilization, and every time we create a new instance, okay, so that means our memory management will affect. Okay, so to achieve using the string builder, generally we have created one object itself, SB, okay, and that SB will string builder have the opportunity to think, string builder have the provision to the adding the fields, adding the string or modifying the strings, okay. We can modify the existing string as well, so lots of operation that string builder basically provides। तो यहाँ पे हम ये वाला सीन रन करके देखेंगे। ओके, तो ये हमने रन करने से पहले जो भी वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग बिल्डर ऐड किया है, ओके, उसको इधर हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग बिल्डर एसबी डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर एस बी डॉट अपेंड। अपेंड में क्या होता है, माई नेम। ओके, माई नेम के बाद इज, उसके बाद है अभिषेक, उसके बाद चित्तौड़े। ओके, एंड यहाँ पे हमने किया प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस, जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज एज इट इज, या वी हैव फॉर्मेटिंग हमने की नहीं किया है, दैट्स व्हाई कंबाइन में डाला है, तो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली डिस्प्ले एज इट इज। सो बीच में हम स्पेस भी ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर वी कैन मॉडिफाई दैट, बट या द रीजन इज बेसिकली हियर वी नीड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। ओके, सो न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम कॉन्केट कॉन्केट करके एक वेरिएबल में हम दे सकते हैं, दैट इज नॉट केस। ओके, बट वी नीड टू क्रिएट न्यू वेरिएबल्स, so that is a main difference between the string and string builder। But in the case of string builder, we have the string builder, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। अपेंड मीन्स आगे ऐड करते जाता है, जो भी स्ट्रिंग हमें ऐड करना है वो ऐड करते जाता है। देर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एट ऑल। ओके, so that will be affecting, that will be creating new object in string itself, but in string builder we are appending that objects, appending the values in the existing string builder itself। So this is the one of the difference, okay, in between the string and string builder। All right, yeah, so true string means whenever we are displaying any values, okay, so as we are using the values, okay, so normally why string is required here, okay, so we can use the as it is here, okay. So why string to string is required, what is the exactly use of that, okay. Yeah, okay, yeah, so as a technically there is a no डिफरेंस वी कैन सी है, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर डालने के बाद और स्ट्रिंग करने के बाद भी कोई भी यहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं दिखता। बट whenever why to string is required, so whenever we are having the any values, okay, and we are overwriting that values or we are updating that values, so so string builder sorry, to string is a inbuilt function that C# provides, okay. Whenever we convert that values, okay, to an object, it is and it basically represent a string itself, okay। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, आइदर इट इज इन डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट वैल्यूज, आइदर इंटीजर वैल्यूज, जब भी हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग यूज करते हैं, राइट, तो दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू ओनली। ओके, ऑलरेडी दिस इज अ स्ट्रिंग बिल्डर है, राइट, बट वी रिप्रेजेंट दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, जब भी हम टू स्ट्रिंग यूज करते हैं, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज बेसिकली
स्ट्रिंग वैल्यूज, ओके, वट एवर वी पास। यहाँ पे हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट केस, बट जब भी हम कोई भी वैल्यू को एज अ पर्टिकुलरली टू स्ट्रिंग कन्वर्ट टू इंट, ओके, देर आर कन्वर्जन प्रोसेस आर देयर, आइदर हम कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट डॉट टू इंट, सपोज ये वैल्यू है अपनी, राइट, एंड उसको हम कन्वर्ट करें इंटीजर में, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। सो दिस आर दी डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन प्रोसेस आर देयर। कन्वर्ट टू इंट मतलब ये वैल्यू कहाँ से भी आनी चाहिए, बट इसको हम कन्वर्ट करना है इंटीजर में, बट एक्चुअली ये कन्वर्ट करते टाइम वर्क नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिमिलर वे पे, if you have the values, okay, which is associated, which is we are using, okay, in that case, suppose we are using the string dot to string, so means forcefully, or we can say we are converting, or we are strictly following that values should be in the string format itself, okay. Already it is coming string builder, we are using the string builder, that's why we are directly using the to string here, means it is a string values, okay. Write the specified string values, okay, followed by the current line terminated to a standard output stream values, the value to be right। तो यहाँ पे इसलिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग, मतलब जो भी वैल्यूज है ये एसबी में वो स्ट्रिंग में प्रॉपरली स्ट्रिंग में दिखनी चाहिए, ओके। सो दैट इज द रीजन, बट एज अ आउटपुट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज अ द प्रोसेस वेयर वी हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यूज or allocate the in specific format only. So that's the reason main we can use the to string. Yeah, so जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए विद इन द स्ट्रिंग itself, so we can use the to string, okay। So yeah, this is basic difference between the string and string builder। उसके बाद भी हम बहुत सारे एडिशनल फीचर्स है जो हम यूज कर सकते हैं कि फॉर द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर के लिए, ओके। सो अभी उसके बाद हम देखेंगे कि सपोज लेट्स सी कंसिडर अपना ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, राइट। तो उसमें लेट्स सी कंसिडर हमें क्या करना है कि अभी स्ट्रिंग के केस में देखो, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है अपने राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो सपोज मुझे क्या करना है कि इसके पहले है मुझे यहाँ पे एम आर लगाना है, एम आर डॉट, ओके। बट स्ट्रिंग के केस में बहुत कॉम्प्लिकेट चेंज करना पड़ता है स्ट्रक्चर अपना, राइट। स्ट्रिंग के केस में अपना स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर बहुत सारा चेंज करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे हम देखते हैं मुझे क्या करना है कि एक ये मेरा स्ट्रिंग है, उसमें मुझे क्या करना है, माई आई हैव टू ऐड द जो नाम है यूजर का, नाम के पहले क्या करना है, मुझे अपडेट करना है एज सपोज दिस मिस्टर अभिषेक ऐसा आना चाहिए, राइट। सो हाउ वी कैन अचीव दिस, ओके। इंसर्ट वैल्यू टू स्ट्रिंग बिल्डर इन स्पेसिफिक इंडेक्स बोलते हैं हम उसको, ओके। स्पेसिफिक इंडेक्स, ओके। तो स्ट्रिंग में कैसे हम करते हैं, ओके। सपोज यहाँ पे हमें चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो 9 इंडेक्स के बाद हमें ऐड करना है, तो एस बी डॉट इंसर्ट। सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स में क्या है, इंटीजर इंडेक्स है, बुलियन वैल्यू, दो वैल्यूज हमें पास करनी पड़ेगी। सपोज इंडेक्स है अपना, सपोज 11, उसके बाद क्या ऐड करना है हमें, एम आर, ओके, एम आर। सो दैट विल प्रिंट एज अ मिस्टर, ओके। उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना है कि सपोज वी वांटेड टू रिप्लेस एनीथिंग, रिप्लेस वैल्यू इन स्पेसिफिक इंडेक्स यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। हाउ टू रिप्लेस, ये रिप्लेस में क्या होता है कि
सपोज दिस इज द नेम, ओके, अभिषेक चितोड़े, तो हमें क्या करना है, लेट सी कंसिडर, तो उसको हमें रिप्लेस करना है। ओके, एस पी डॉट रिप्लेस, सपोज फर्स्ट जो रिप्लेसेबल स्ट्रिंग है सितोड़े, यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस का कीवर्ड डाला। सो लाइक वे, ओके, लाइक वे वी कैन रिप्लेस दैट थिंग, ओके। एंड उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं, और अपना इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम इसी स्ट्रिंग बिल्डर को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, मतलब पूरा क्लियर, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम क्लियर कर सकते। तो लाइक दिस ऑपरेशन, इंसर्ट करना है, रिप्लेस करना है, स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें अपडेट करना है, ओके। उसके बाद हम रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक लाइन है मुझे उसके अंदर रिमूव है, तो रिमूव के लिए भी एक फंक्शन है अपने पास, ओके, कि कौन सा इंडेक्स से क्या रिमूव करना है, ओके। एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ा, और उसमें से हमें लगता है कि या दिस इज अनवांटेड टेक्स्ट दैट आर वी आर प्रिंटिंग, सो वी नीड टू रिमूव। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग हमने यहाँ से दिया है, बट इन जनरल इन लाइव एप्लीकेशन हमें स्ट्रिंग अगर दूसरी जगह से स्ट्रिंग आता है तो उस पर हमें ऑपरेशन करना है। यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग हमने ऐड किया है और हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, बट दैट इज जस्ट एग्जांपल, बट रियल टाइम में एक्चुअल में स्ट्रिंग दूसरी जगह से आती है, मतलब बैकएंड से कोई सर्विस है, सर्विस से हमें स्ट्रिंग आती है, हमें उस पर ऑपरेशन कर ले डायरेक्टली, मतलब हम ऐड नहीं करते, दूसरी जगह पे वो स्ट्रिंग अपने को आती है, राइट। तो उसी केस में हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वंस अगेन। ओके, दिस इज आवर स्ट्रिंग, दिस इज आवर स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर में क्या ऐड हुआ है, जो भी वैल्यूज है वो ऐड हो गई, राइट। ये वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमने क्या किया, कि लाइन इंडेक्स पे यहाँ पे 11 हमने ऐड किया, ओके। सो 11 ऐड करने के बाद हमने एट द एंड लास्ट में उसको रिप्लेस किया, और उसके बाद हमने प्रिंट किया। तो जो भी हमारा आउटपुट है, सो वी कैन हैव द जो भी आउटपुट है हमारा, वी कैन सी, ओके। सो या बट देयर इज ए मिस्टेक, माय नेम इज मिस्टर, यहाँ पे दो स्पेस है, दैट्स व्हाई, ओके। सो जो आउटपुट आया है बेसिकली थोड़ा इंडेक्स में चेंज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बीच में वो वैल्यूज अपडेट हुआ है, राइट। ये भी के बाद में आना चाहिए, तो बढ़िया। सो लाइक वाइज या द लॉजिक बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो लास्ट नेम था, ओके, लास्ट नेम इसको हमने रिप्लेस करके इस ये डाला है, बीच में है ये इंसर्ट किया है हमने, राइट, बीच में ये इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे हमें 9 देना पड़ेगा, तब वो वैल्यू करेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो लाइक वे बीच में हम स्पेस ऐड कर सकते हैं, वट एवर चेंजेस हमें जो चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो नॉर्मली यहाँ पे जो भी है एक स्पेस ऐड किया, तो जो भी ऐड करते हैं हम वहाँ पे वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, ओके। सो दो पेज ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा हमें 11 डालना है।
अगर प्रॉपर फॉर्मेट में दिखना चाहिए तो इसके लिए हम वी कैन गो विद दैट ऑप्शन. Okay, so like a way, this is our final string. So we have added this one, replace this one. So initially we added this one, but later we replace that, added here, inserted new text here. Okay, एंड उसके बाद जब भी अपना पूरा काम होता है, अभी लेंथ में देखा जाए तो यहाँ तो 29 है, तो ये हम जब भी अपना यूज हो जाएगा तो उसके बाद क्लियर किया तो उसका लेंथ अभी देखो 0 हो गया, तो दैट मीन्स हम क्लियर कर देते हैं हम जब भी हम यूज करते हैं. इट इज नॉट कंपलसरी, आपने क्लियर क्लियर नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, बट एज ए स्टैंडर्ड मतलब मेमोरी यूटिलाइज होती है तो वो एज इट इज नहीं रखना चाहिए, जैसे कि यूज होता है वो उसके बाद क्लियर करना चाहिए. सो इट इज अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस इन एप्लीकेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइस स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. ओके, सो ये दोनों में रियल टाइम में डिफरेंस है. ओके, स्ट्रिंग के केस में हमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर वैल्यूज हम ऐड करते हैं, उसको हम इजीली वन बाय वन करके क्लब करते हैं, उसको हम अपडेट करते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर. ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट है? एवरीवन, सब लोगों को समझ में आए? एवरीवन, so now there is additional few topics that we have, the simple one actually. But yeah, for string and string builder, everyone, सब लोगों को समझ में आए? Yes, no, or anyone having any issues or maybe concern or not understanding? किसी को समझ में नहीं आया? Like anyone? Because yeah, it's not that much complex, but yeah, as a implementation जब हम start करेंगे, जब practice करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा end to end. Okay. All right. So other guys, I could see there are only few responses. Other guys, समझ में आया नहीं? Anyone? Yeah, please fast reply because based on your reply only we are going to next level. So now we are going to discuss about next thing, that is a boxing. Yeah. So before moving to that, ये जो टॉपिक है लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर, उसका डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब मेन डिफरेंस क्या है कि जैसे कि हम स्ट्रिंग बिल्डर और नॉर्मल स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग में देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया लास्ट नेम लिया, दोनों को एक कंबाइन किया, यहाँ पे थर्ड में डाला, वैसे रिट्राव किया. ओके, स्ट्रिंग बिल्डर को देर इज नो, ये ऑब्जेक्ट एक बार बनाया हमने एस बी, तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग दिस एस बी, बट स्ट्रिंग में नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एवरी टाइम. सो दिस इज मेन डिफरेंस. So that's why our application may impact on the performance. So every time object creation, memory utilization is happening. So that's why string is slow and it's immutable, because we are creating new object every time. All right. So next thing is we have to implement as a new thing, just this boxing and unboxing. This is not a major concept, just a conversion process is there. Okay. Boxing. So boxing means what? It is a process of converting. It is a process of converting value type to, okay, वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट में करते हैं, अभी वैल्यू टाइप है, सपोज लेट्स कंसीडर इंटीजर आई इक्वल टू सपोज 10. सो दिस इज अ वैल्यू, उसको हम बोलते हैं वैल्यू टाइप. तो दिस इज अ वैल्यू टाइप. इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑब्जेक्ट टाइप. मतलब ये आई में क्या है, आई में है वैल्यू, ऐसा आई इक्वल टू आई में है वैल्यू, मतलब 10 जो वैल्यू है वो हम आई में लिया है, दैट इज कॉल्ड एज ये वैल्यू टाइप प्रोसेस है, उसको इसको बोलते हैं वैल्यू टाइप. अभी इसको हमें क्या करना है, बॉक्सिंग करना है. बॉक्सिंग मीन्स वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप हम कन्वर्ट करते हैं. सपोज ऑब्जेक्ट, सपोज
वाई इक्वल टू, सपोज दिया हमने आई, तो दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉक्सिंग। ओके, दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉक्सिंग, मतलब वैल्यू टाइप को सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट किया टू द ऑब्जेक्ट में। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, means it is converting automatically, there is no forcefully implementation required, so that's why we can call it as a implicit conversion. So boxing is a implicit conversion. So boxing is a process of converting value type to object type. Okay, दिस इज अ बॉक्सिंग। मतलब ये आई आई में वैल्यू थी 10, उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट में लिया। ओके, सो आई को हमने ऑब्जेक्ट में, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। ओके, कन्वर्जन प्रोसेस, मतलब आई को हमने क्या किया, वाई में लिया, तो द आई विच इज ऑलरेडी इज इन द वैल्यू में, इंटीजर इज अ वैल्यू डेटा टाइप, राइट। तो वैल्यू में ऑलरेडी वैल्यू थी 10, तो उसको हमने कन्वर्ट करके लिया है ऑब्जेक्ट में वाई, y containing that particular value, right? So but y is a object, y is not a value type, y is a object type, so y is a object type, so that this is the process of boxing, इसको हम बोलते हैं बॉक्सिंग। नेक्स्ट है अनबॉक्सिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टाइप टू द, ओके, तो दिस प्रोसेस बेसिकली वी कैन कॉल्ड एज अ अनबॉक्सिंग। ओके, अनबॉक्सिंग में देखो अभी जो ऊपर हमने लिया है, ओके, सो सपोज ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू, सपोज वी हैव 10, ये 10 ओ में 10 वैल्यू हमने लिया है, तो अभी हमें इसको करना है कन्वर्ट इनटू द वैल्यू, सपोज इंटीजर आई इक्वल टू, दिस इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं, ओके, दिस इज अ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एंड फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, मतलब ऑटोमेटिकली वी कैन कन्वर्ट दैट। ओके, बट यहाँ पे हमने फोर्सफुली मैनुअली हमने जो भी ऑपरेशन करके हमने लिया है, सो दैट इज अ that containing the as a the way basically we are using the yeah, so यहाँ पे ऑलरेडी लिया है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग। ओके, सो ये इंटीजर में ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने किया है इंटीजर में कन्वर्जन, बट कन्वर्जन करते टाइम स्पेसिफाई किया है कि कौन से वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन प्रोसेस। सो वी विल सी हाउ इट विल वर्क। ओके, सो पहले देखो यहाँ पे है 10, इंटीजर वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू टाइप, तो उसको हमने क्या किया, वाई में लिया, बट वाई इज अ ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, सो ऑब्जेक्ट टाइप है, नॉर्मल प्रोसेस है कन्वर्जन की, आई टू वाई, मतलब ये इंटीजर टू वैल्यू टाइप नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब इंटीजर टू ऑब्जेक्ट टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप टू वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉर्मल कन्वर्जन प्रोसेस। मतलब ये वाई अभी इस यहाँ पे देखा जाए, आई में देखा जाए तो 10 है, राइट, इट इज अ वैल्यू टाइप, बट वाई में आने के बाद वो ऑब्जेक्ट टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप में भी सेम वैल्यू हम कन्वर्ट किया, तो सेम सिंपल प्रोसेस है डूइंग द वेब बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मीन्स मतलब वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप कन्वर्जन, इट इज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, देर इज नो हार्ड एक्सप्लिसिटली वी नीड टू डू। उसके बाद है अनबॉक्सिंग। अब ये देखो अनबॉक्सिंग में ऑब्जेक्ट में अपने पास 10 वैल्यू है, राइट, तो उसको हमें करना है अनबॉक्स।
ऑब्जेक्ट में 10 है तो वो ऑब्जेक्ट का 10 हमें लेना है इंटीजर में। उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, जो भी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है, ओके, तो ऑब्जेक्ट में लेके उसको ऑब्जेक्ट को एज इट इज हमने लिया वैल्यू में, तो जे इज अ वैल्यू टाइप। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट टू वैल्यू कन्वर्जन किया और यहाँ पे वैल्यू टू ऑब्जेक्ट हमने कन्वर्जन किया। So this entire process we can call as a boxing unboxing. Boxing means converting value type to object type. Boxing is a implicit conversion, and unboxing is a basically process of converting object type to the value type. Okay, it is a explicitly process. Explicitly conversion means यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे कौन से डेटा टाइप में लेना है हमें, वो स्पेसिफाई किया है। तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड एज एक्सप्लिसिटली, मतलब उस स्पेसिफिक में हमें जाना है, ये यहाँ पे डिफाइन किया है हमने। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इधर हमें स्ट्रिंग में जाना है, बुलियन में जाना है, अदर कुछ फील्ड्स है उसमें जाना है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई दिस फील्ड हियर एक्सप्लिसिटली। ओके, प्रॉपर उसी में जाएगा। so that's why unboxing is a explicit conversion. All right, so this is all about the boxing, unboxing, and string builder. So boxing, unboxing, in it out, guys, on the boxing, unboxing. Just a conversion है, object to value, value to object. All right, so if nothing, then we could have the wind up this session. Okay, so yeah, we have seen the some of the topics right now. Okay, so maybe tomorrow, as usual, we have the holiday on weekend. So, but any mock interviews planning is there. So I will post the message on group. So according that, how many peoples are available. So based on that, we will plan either this week or maybe next week. So according to the schedule, I will update all the details to the group. Okay, but yeah, keep doing the assignment regularly. जो भी असाइनमेंट है असाइनमेंट रेगुलरली करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। concept wise end to end practice karo, so yeah, we'll easily uh, capture this thing. Okay, in case anyone facing any issues like implementation wise or anything, please do reach me, send your photos whatever is very breaking, properly photos भेजो डायरेक्टली आउटपुट का भेजने के बाद। और जहाँ भी एरर है वो मतलब मैं भेजो प्रॉपर, जहाँ भी क्या किया है और क्या इशू है। ओके, so like we can address that. Okay, all right, guys. So thank you for your time, and we will meet again for the next session on the Monday. Okay, have a great day. जो लोग नए हैं उनका पेंडिंग असाइनमेंट्स पेंडिंग थिंग्स है वो try to complete the assignment, try to watch the recording videos. Okay, in this 2 days. Okay, most of them, most important thing जिनका एडमिशन फीस कंप्रेशन बाकी है तो दे कैन कंप्लीट देयर फीस एंड complete admission. So this till weekend. Okay, from Monday I guess those have not completed fee they can remove from the group permanently. Okay, all right, guys. Yeah, thank you all for your time. We'll wind up now. Thanks all for your time. Thank you. Yeah, thanks all. Thanks all.
Anyone having any issues, concern, they can maybe unmute talk. Otherwise, leave for the day. Yeah, thank you.